Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Mahmood Amir and I will be teaching you biology for 10th class today. As you know that we have been studying homeostasis and we have already discussed homeostatic functions in plants and the basis of homeostasis in animals. That how plants maintain their internal conditions, how plants maintain their internal environment despite changes in the external environment, and how animals maintain these balances in their body despite changes in the external environment. In the previous lecture, we have studied that there are basically three major parts of the human body or an animal body which is involved in the homeostasis function. The one of them was skin, the second one was lungs, and the third was kidneys. Okay, we have already discussed how lungs participate in homeostasis, how they remove get rid of extra carbon dioxide, and how they accommodate maximum amount of oxygen. And then we have already studied the function of skin, that how skin maintains the temperature, how it produces cooling effect, what are goosebumps. We have already discussed all of these things, and now we will study the functioning of kidney in detail. In order to study the functioning of kidney in detail, first of all we must study the structure of kidney in detail. Once we have known the structure of the kidney, only then will we be able to study the normal functioning of the kidney, that how does it perform the homeostasis function and how it is beneficial or useful for the well-being of man. So in today's lecture, we will begin with the urinary system of humans. First of all, we will study the composition of the urinary system, that how many parts are included in it. And after that, we will study the detailed structure of kidney. And inshallah, in Thursday's lecture, we will discuss the functional unit of kidney, and with that we will discuss the functioning of the kidney. So the urinary system of human beings is also known as excretory system. ठीक है, इसको हमने दूसरा नाम क्या दिया हुआ है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का. एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली आपकी बॉडी में, किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है थ्रू विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ इट्स वेस्ट मटेरियल. ठीक है, waste material means metabolic wastes are being synthesized in the body at every time, because metabolism do not stop. As long as we are respiring, metabolism is occurring. metabolism होता रहेगा जब तक आप सांस ले रहे हैं. ठीक है, क्योंकि metabolism basically क्या है, when we respire we take in oxygen and the food we have eaten contains carbon and hydrogen bonds, and these bonds are broken down and they are converted into C bond O. मतलब क्या है इस बात का कि आपके पास जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट हैं, वो क्या हो जाते हैं जी, ब्रेक डाउन हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होकर ऑक्सीजन वहाँ पर ऐड करवा दी जाती है. यानी वो सी बॉन्ड एच किस में कन्वर्ट हो जाता है, सी बॉन्ड ओ में. ओके, जस्ट लाइक दिस कि आपके पास नॉर्मली जो है वो क्या है, नॉर्मली आपके पास क्या होता है फूड के अंदर, सी बॉन्ड एच. ठीक है, अब आप जब कोई भी फूड इनटेक करते हैं तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है सी बॉन्ड ओ में. ठीक है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गई और ऑक्सीजन क्या हो गई है, ऐड हो गई है. ठीक है, देन अब इसको इस प्रोसीजर के दौरान, ठीक है, व्हेन सी बॉन्ड ओ इज फॉर्म्ड, there are many waste materials which are also produced. For example, ammonia, urea and uric acid, which are very harmful for the human body. So they must be removed outside the body. ठीक है, तो कहता है जी अब ये निकालना ज़रूरी है बॉडी के अंदर से. तो इनको निकालने के लिए जो मेजर सिस्टम इन्वॉल्व है उसकी कंपोजिशन देख लेते हैं कि उसमें चीज़ें क्या क्या शामिल हैं. ठीक है, द यूरिनरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ वन पेयर ऑफ किडनीज. वन पेयर ऑफ किडनीज मीन्स आपकी बॉडी में दो किडनीज होते हैं. ठीक है, ये देखें डायग्राम साथ ही मैंने अटैच कर दी थी. देयर इज वन किडनी ऑन द राइट साइड एंड देयर इज वन किडनी ऑन द लेफ्ट साइड. ठीक है,
लेफ्ट पे एक किडनी है और राइट पर एक किडनी है, ठीक है। अ पेयर ऑफ यूरिटर्स, अब यूरिटर बेसिकली आपके पास वो ट्यूब होती है या वो पाथवे होता है जो किडनी से यूरिन कैरी करके यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाता है, ठीक है। यूरिटर इज बेसिकली द पाथवे विच टेक्स द यूरिन विच इज फॉर्म्ड इन द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब ये देखें आपके पास ये जो किडनी है इसके अंदर से एक वाइट सी ट्यूब ओरिजिनेट हो रही है, ये ब्लू वाली लाइन के साथ, ये जो ब्लू वाली वेन आ रही है आपके पास इसके साथ देखें एक प्रॉपर वाइट सी लाइन जा रही है जो कि आपके पास यूरिनरी ब्लैडर तक जाके नीचे अटैच हो रही है, ठीक है। दिस वाइट लाइन और दिस वाइट ट्यूब इज बेसिकली कॉल्ड एज यूरिटर। As we know that we have two kidneys, means we have a pair of kidneys, so we have a pair of ureters, ठीक है, one for each kidney. Then a urinary bladder, अब ये जो आपके पास नीचे सैक सी नजर आ रही है, ठीक है, लास्ट पोर्शन, ठीक है, ये जो सैक सी नजर आ रही है, दिस सैक इज बेसिकली नोन एज यूरिनरी ब्लैडर। इट एक्ट्स एज अ टेम्परेरी स्टोरेज, ठीक है, मीन्स आपको यूरिनेशन फील हो रही है, ठीक है, लेकिन आपको कहीं पर वॉशरूम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अनटिल द अवेलेबिलिटी ऑफ द वॉशरूम, जितनी देर आपकी बॉडी के अंदर आप वॉलंटरीली क्या कर सकते हैं, यूरिन को होल्ड कर सकते हैं, तो यूरिन आपकी बॉडी के में कहाँ स्टोर रहेगा, इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। एंड देन द लास्ट पोर्शन इज बेसिकली नोन एज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज बेसिकली द final tube like opening which is helpful in removing urine from the body। या ये आपके पास वो लास्ट पोर्शन है, ये वो लास्ट ट्यूब है जिसमें से यूरिन पास होता हुआ बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। मेजर हमारे पास कितने कंपोनेंट्स, वी हैव स्टडीड 4 मेजर कंपोनेंट्स। द फर्स्ट इज द पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, देन अ यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। पेयर ऑफ किडनीज, one on each side. Okay, one pair of kidneys, one on each side of the body, one is on the left side and one is at the right side. A pair of ureters, one originating from each kidney, a urinary bladder and a urethra. Now what does the kidney do? Kidneys filter blood to produce urine and the ureters carry urine from kidneys to the urinary bladder, ठीक है। अब बेसिकली किडनी क्या करती है, द किडनीज के अंदर आपके पास बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, स्मॉल कैपिलरीज बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, तो कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड और किडनी में ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, तो ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने की वजह से और ब्लड वेसल्स की वॉल थिन हो जाने की वजह से जो ब्लड वेसल्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो फिल्टर आउट हो जाता है, ठीक है, और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में से फिल्टर आउट होता है इट इज बेसिकली कॉल्ड एज यूरिन, ठीक है। और फिर जब वो यूरिन की फॉर्मेशन हो गई है तो यूरेटर विल कैरी दिस यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, यानी इस रीजन में ये जो रेडिश बीन लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसमें क्या बनेगा, यूरिन बनेगा। देन दिस वाइट डक्ट विल कैरी द यूरिन अप टू द यूरिनरी ब्लैडर। द ब्लैडर टेम्परेरीली स्टोर्स यूरिन अंटिल इट इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी। अब जब तक यूरिन को आप पास ऑन नहीं करते बॉडी से, ठीक है, तब तक यूरिन आपकी बॉडी में कहाँ पर स्टोर रह सकता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। एंड यूरेथ्रा इज द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब यूरिन जो है वो बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इट कंटेन्स मैनी हार्मफुल केमिकल्स, तो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है ये। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द सर्कमस्टेंसेज ऑफ दिस वेस्ट प्रोडक्ट इट मस्ट बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। द पोर्शन, द ऑर्गन विच इज रिलेटेड टू द excretion of this urine is basically urethra, okay। now structure of kidney, कहता है kidneys are dark red bean shaped organs। अब ये देखें, ये नीचे मैंने डायग्राम अटैच किया है, तो डार्क रेड आपको नजर आ रहा है इनका कलर एंड बीन शेप लोबिया नुमा है, ठीक है, डार्क रेड कलर के होंगे और लोबिया नुमा होंगे, ठीक है। कहता है ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हम ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 किडनीज होती हैं, हमने पढ़ लिया ना, अ पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है। ईच किडनी, दोनों किडनीज क्या होंगी, अपनी अपनी जगह पर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगी, ठीक है। बोथ आर 5 सेंटीमीटर वाइड एंड बोथ आर 4 सेंटीमीटर थिक एंड बोथ वेज अबाउट 120 ग्राम्स।
10 सेंटीमीटर बड़ी होंगी, ठीक है, या लंबी होंगी, 5 सेंटीमीटर वाइड यानी चौड़ी होंगी, एंड 4 सेंटीमीटर थिक, मोटी, ठीक है, एंड वेज अबाउट 120 ग्राम्स। कहता है दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायफ्राम, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। कहता है they are placed against the back wall of abdominal cavity just in the previous diagram। ये देखें आप, ये बेसिकली आपके पास जो है ना, ये सारी रीजन, दिस रीजन इज बेसिकली abdominal cavity, ये जो ऊपर वाले रीजन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऊपर आपको वाइट वाइट नजर आ रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आपको रिब्स नजर आ रही है ना, लेफ्ट और राइट साइड पर रिब्स हैं, और उस रिब्स के ऊपर ये जो अंदर वाली तरफ आए, तो ये दिस वाइटिश पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग डायाफ्राम, the kidneys are just located below the diaphragm। और ये देखें ये पीछे करके हैं, बैक साइड में, इसके आगे यहाँ पर आपके पास सारा डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, ये पिछली तरफ है, यानी बिल्कुल वर्टेब्रल कॉलम के आप क्या कह सकते हैं, आगे, वर्टेब्रल कॉलम के बिल्कुल आगे, ठीक है, लेकिन फ्रंट वाली तरफ। कहता है दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायफ्राम, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। अब ये देखें, ये जो पीछे आपको नजर आ रहा है मसल सा आता हुआ, ये बेसिकली वर्टेब्रल कॉलम का मसल आ रहा है, ठीक है, इसने वर्टेब्रल कॉलम को लपेटा हुआ है, मतलब वर्टेब्रल कॉलम के गिर्द रैपिंग हुई हुई है। तो अब अगेंस्ट द वर्टेब्रल कॉलम ये अटैच्ड है, एंड वन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड वन इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, ठीक है, एक लेफ्ट तरफ प्रेजेंट है और एक राइट तरफ प्रेजेंट है। They are protected by the last two ribs, they are protected by the last two ribs। अब ये देखें, इनकी प्रोटेक्शन देख लें, ये और ये, एंड दिस वन एंड दिस वन, these two are basically the ribs, और ये इसको क्या कर लेती हैं, इन्वेलप कर लेंगी, these ribs will envelop them। अब जब ये रिब्स के नीचे प्रेजेंट हैं, ये बेसिकली सॉफ्ट एंड स्क्विशी होते हैं, ठीक है, तो एक्सीडेंटल इंजरी या किसी ने आपको जोर का पंच किया तो ये डैमेज हो सकते हैं, बर्स्ट हो सकते हैं, तो दे आर बेसिकली प्लेस्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ रिब्स। अब आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो फर्स्ट द रिब्स विल गेट डैमेज, एंड व्हेन द इंजरी विल बी सो सिवियर ओनली देन विल योर किडनीज विल बी डैमेज्ड, अदरवाइज द किडनीज विल बी अनहार्म्ड एंड ओनली द आउटर स्किन विल गेट ब्रूजेस एंड बम्प्स। ओके, आपके ये जो किडनीज हैं दोनों, इनको कहाँ प्लेस किया जाता है, लास्ट दो रिब्स की प्रोटेक्शन में, ठीक है। हमें पता है रिब्स जो हैं वो क्या होती हैं, हार्ड और टफ होती हैं, तो उधर क्या होगा आपका जो, और उधर जो आपका है किडनी, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया आपका खुदा ना खास्ता, या किसी ने मारा है आपको, तो गुर्दे जो हैं वो बच जाएंगे, उनको इतना जल्दी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। देन जी कहता है द कनकेव साइड ऑफ द किडनी फेसेस वर्टिब्रल कॉलम। अब कनकेव साइड का हमें पता है, जो चीज इनर साइड पर बेंड हुई हो, ठीक है, इनर साइड पर बेंड हुई होने का मतलब है दिस पोर्शन, सही है, ये वाला पोर्शन जहां से आपके पास ये ब्लड वेसल्स और यूरेटर ओरिजिनेट हो रहा है, दिस पोर्शन इज बेसिकली नोन एज कनकेव साइड। अब देखें, दिस कनकेव साइड इज फेसिंग वर्टिब्रल कॉलम, मींस ये बॉडी से बाहर की तरफ फेस नहीं करता, ये अंदर की तरफ फेस करता है, सेंटर की तरफ फेस करता है, यानी दोनों पेयर ऑफ किडनीज क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, और दोनों का फेस जो है वो बेसिकली किस तरफ पॉइंटेड होता है, वर्टिब्रल कॉलम की तरफ, ठीक है। कहते हैं देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस। ये देख लें, अब ये जो सारी आपके पास चीज है ना, रीजन, ये जो पोर्शन है जहां से आपके पास ये ब्लड वेसल्स ओरिजिनेट हो रही हैं, दिस पोर्शन इज नोन एज बेसिकली हाइलस। ओके, दिस पोर्शन इज बेसिकली नोन एज हाइलस, या इस डायग्राम में देखें क्लियरली, तो ये जो आपके पास रीजन है, ये जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, ठीक है, दिस पोर्शन इज नोन एज हाइलस नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ किडनी, ठीक है। अब ये कहां पर प्रेजेंट है, देखें ऑलमोस्ट सेंटर में, दिस कनकेव पोर्शन इज बेसिकली प्रेजेंट एट ऑलमोस्ट इन द सेंट्रल रीजन। ये देखें जी, देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस। अब हाइलस कौन सी जगह है, ये देखें, ऊपर से किडनी आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, नीचे से भी किडनी आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, सेंट्रल पोर्शन इज नॉट दैट फॉरवर्ड बेंटेड, या बहुत ज्यादा आगे झुकाव नहीं है इसका, ठीक है। तो ये जो डिप्रेशन सा अपीयर हो रहा है, ये जो खाई सी बन रही है, बेसिकली दिस इज नोन एज हाइलस, इट इज प्रेजेंट नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ द किडनी। अब ये देखें, ये कनकेव एरिया है ना, ये अंदर की तरफ बेंड हुआ है, जो चीज अंदर की तरफ बेंड हुई है वो क्या होती है, कनकेव।
कहता है दिस इज द एरिया ऑफ द किडनी थ्रू विच यूरेटर लीव्स किडनी एंड अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स एंटर एंड लीव किडनी। ठीक है, अब देखें वो कहता है ये जो है ना किडनी की मेजर साइट है, इस मेजर साइट से आपके पास क्या होता है, यूरेटर लीव करता है। यूरेटर क्यों लीव करता है, क्योंकि उसने यूरिन कैरी करना है कहाँ तक, यूरिनरी ब्लेडर तक। ठीक है, फिर यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं हमारे पास। ब्लड वेसल्स क्यों होती हैं जी हमारे पास, ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, वो इम्प्योर ब्लड लेके आती हैं, यानी ऐसा ब्लड जिसमें वेस्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा है वो यहाँ पर लेकर आती हैं। फिल्टर आउट होने के बाद दूसरी ब्लड वेसल्स जो हैं वो उस प्योर ब्लड को वापस क्या करती हैं, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाती हैं। ठीक है, यानी इसमें आर्टरीज भी आती हैं और वेन्स भी आती हैं, दोनों आती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स, अब देखें आपके पास बेसिकली जो लिम्फ होता है, यानी आप क्या कह सकते हो टिश्यू फ्लूइड वगैरह हो गया, वो सारे भी यहाँ पर क्या आते हैं, पहुंचते हैं, क्योंकि उन्होंने भी क्या करना है, साफ होना है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना है। एंड नर्व्स एंटर एंड लीव किडनी। अब नर्व्स बेसिकली आपके पास जो है वो सेंसरी नर्व्स कह लें, मोटर नर्व्स कह लें, क्योंकि इन केस ऑफ एक्सीडेंट और इंजरी किडनी मस्ट सेंड द मैसेज टू द ब्रेन कि मुझे कुछ नुकसान पहुंचा है या ये वाला फिल्ट्रेशन अब इनिशिएट करवाई जाए या जो भी है, वो अगर नर्व्स होंगी तो ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, वरना ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाएगा। ठीक है, देन इन द नेक्स्ट पोर्शन द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बेसिकली कहा जाता है, आप ये देखें, ये जो गुर्दा आपके सामने ये टॉप टू बॉटम कटा हुआ है। ठीक है, टॉप टू बॉटम दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, तो ऐसे सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। यानी आप क्या करें, आप अपनी बुक या कॉपी से फॉर एग्जांपल, ठीक है, कॉपी या बुक आपने उठाई और उसको दो इक्वल हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी सेंटर से पकड़ के 50 पेज इस तरफ फाड़ दिए लंबे रो। ठीक है, 50 पेज एक तरफ फाड़ के अलग कर दिए, 50 पेज एक तरफ फाड़ के अलग कर दिए, वो बेसिकली क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, या जैसे आप से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल दूं, तो मुझे सर से लेके पांव तक, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक सीधा, सर से लेके पांव तक दो बराबर हिस्सों में काट दें। ठीक है, कि मेरा राइट बाजू राइट साइड की तरफ अलग हो जाए, राइट आई राइट साइड की तरफ अलग हो जाए, राइट नॉस्ट्रिल अलग हो जाए। ठीक है, इस तरह पूरी बॉडी मेरी क्या हो, राइट साइड पर अलग और लेफ्ट साइड पर अलग। दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज बेसिकली नोन एज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपके पास बन गया। अब उसके अंदर से जो फिर हमें स्टडी करने के लिए पोर्शन मिले, उनमें बेसिकली द फर्स्ट वन इज रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी। वो क्या है बेसिकली आपके पास जी, आपकी किडनी का आउटर पार्ट है, बाहर का पोर्शन है। ठीक है, अब ये देखें आपके पास ये जो पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये जो खूबसूरत से शाइनी से बने हुए हैं, इनसे पीछे पीछे वाला जो पोर्शन है सारा, ठीक है, ये जो सारा पीछे वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज बेसिकली नोन एज रीनल कॉर्टेक्स and it is dark red in color and its appearance will be dark red. Dark red means गहरा सुर्ख, आपको क्लियरली नजर आएगा आप जैसे ही किडनी काटोगे। आफ्टर दैट देयर इज रीनल मेडुला। रीनल मेडुला, रीनल मेडुला इज द इनर पार्ट ऑफ द किडनी एंड इज पेल रेड इन कलर। ये बेसिकली क्या होता है, ये इज आउट नाउ व्हाट बेसिकली इज रीनल मेडुला। रीनल मेडुला आपके पास बेसिकली इनर पोर्शन है। ठीक है, इनर पोर्शन जो है वो आपके पास क्या होगा, पेल रेड, उसका कलर जो है वो येलोविश रेड होगा, डार्क रेड ब्राइट रेड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, रेडिश तो होगा लेकिन पेल होगा, उसमें येलो का हिंट होगा। ठीक है, अब रीनल मेडुला में बेसिकली आपको क्या चीज मिलती है, इट कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल कोन शेप्ड एरियाज कॉल्ड रीनल पिरामिड। अब ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, ठीक है, ये जो बेसिकली आपके पास ट्रायंगल्स सी बनी हुई हैं, बेसिकली जो ट्रायंगल्स सी बनी हुई हैं, दीज ट्रायंगल्स आर बेसिकली कॉल्ड एज रीनल पिरामिड्स एंड वेयर दे आर लोकेटेड इन द रीनल मेडुला रीजन। ठीक है, रीनल